Have your attention, please welcome the chief guest of the conclave. Media persons and ladies and gentlemen. This sui generis conclave is the first of dialogues and conversations that meets mark of love and respect, a token of appreciation. Thank you so much, sir, for being here, gracing this occasion, this conclave, and in fact showering us all with your love by your mere presence. Thank you so much. And as you can see, ladies and gentlemen, our very young and dashing chief guest in this traditional Mishmi attire. Thank you to you too, sir, for being here with us in this conclave and accepting this token of love. A round of applause, ladies and gentlemen. A traditional gear of the Nishi tribe with a scarf and apatani scarf and match it, and to complete it with the traditional bag, as you can see, and the Nishi headgear. Thank you so much. A complete picture, please take your seat. A Wangcho traditional bead. As you all know, we are more than 26 major tribes in Arunachal Pradesh with more than 100 sub-tribes, and you can see the Wangcho tribe, the headgear, the Noctic headgear on the Maharaja of Tripura, our very, very special guest on this conclave, a round of Gale or a Mekhila in Assamese of the Noctis, and a modern bag to complete it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for bringing more beauty to this day by your presence. Thank you for being here and accepting this token of love, this traditional gear of the Idu Mishmi tribe. And a Patani scarf and a bag, modern bag with Idu Mishmi motifs. Thank you so much. May I also request Patricia Mukhe. This is an Apatani Gale, traditional wear. Apatanis of the Lower Subansiri district, ladies and gentlemen, complete with a scarf and a bag of the. Thank you so much for giving us time, ma'am, being present here, and this beautiful traditional wear of the Idu Mishmi tribe in black and colorful motifs, and a matching scarf and a handbag. Thank you. I also request Dr. Andre Mahuda, who is the president of, to accommodate and wear this traditional gear of a Nishi tribe with Abatak
and the beat to complete the look, Mignon, a beat from Upper CI. So that is Dr. Andrea Ahodo. Thank you very much. Thank you. It's an emerging realities 2020, India, Northeast India. I'm very happy for this country, ladies and gentlemen, it is being released by our chief guest and Christopher Potter and NPP President Mr. Methi, along with the authors and the publishers here, a photo session being taking place. The release of the book, a round of applause, definitely. A lot of hard work goes into writing a book, a lot of research, and it is for all of us to read and arm ourselves and enlighten ourselves on this topic. Change all the media persons and camera persons on the dais and all the dignitaries. Geographically, our northeast region may be connected with the rest of our great country by a chicken neck, but emotionally, our region is connected by an elephant neck. ये कोई अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे इतिहास में जाएंगे, वी गो बैक टू आवर हिस्ट्री, हमारी जो राज्य है त्रिपुरा, इट्स ओवर 1000 years old. It has got great history, not because it had Maharajas, but because it had culture, because it has customs, it has demolished in one day. हमारे पास विश्वास नहीं है आज, कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर, और ये विश्वास को तोड़ने के लिए आपको हमारे इतिहास के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा. आज जो त्रिपुरा एक समय 90+ इंडिजिनस हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे, आज हम अपने राज्य में सिर्फ 30% है. हमारी भाषा खतरे में है, हमारी कल्चर खतरे में है. आज अगर आप बहुत जगह में त्रिपुरा में जाएंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये एक इंडिजिनस ट्राइबल किंगडम था. ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमें इग्नोर किया गया. किन्होंने इग्नोर किया? या फिर हमारे खुद के नेता ने हमें इग्नोर किया, या फिर एक पॉलिसी रहा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हम अपने लोगों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं, तो दूसरे देश से जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भेजेंगे, वेदर इट इज असम, वेदर इट इज अरुणाचल, वेदर इट इज त्रिपुरा, वेदर इट इज मेघालय, तो क्या होगा कि ये लोग जो हमारे कल्चर से क्लोजर हैं, जो आज बांग्लादेश में है, they will probably be able to integrate India into a larger holistic state. Yeah, it's not a Janata Party government of India. But if you see, the government of India has New Delhi. ब्यूरोक्रेट ने दिल्ली में बैठकर ये डिसीजन लिया और आज तक अरुणाचल में हमें आने के लिए रास्ते से आना पड़ता है, या फिर 2006-07 में आया, अरुणाचल में भी शायद 2006-07 में आया. आज के दिन कर्नाटका में, महाराष्ट्र में 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2007 से पहले सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी. ये सब पॉलिसीज कौन बनाता है? कोई व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा होता है, जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, और ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं. तो जैसे मेक पीस में शुरू में शी स्टार्टेड बाय सेइंग दैट रिगार्डिंग त्रिपुरा, yes, today I have a political party. We have won the election thanks to a lot of help from my fellow friends from other political parties right here. Conrad Sangma, who's helped me, James has helped me. First person to actually honor me after I won was Lurin Jyoti in Assam. I thank him for that. The fact is that why are we today fighting for a space in our own state? Why are we fighting for a space in our own state? The reason is that the space has been denied to us over a period of 7 decades.
एंड टुडे व्हेन यू स्पीक आउट विद कॉन्फिडेंस, अगर मैं कॉन्फिडेंटली बात करता हूं तो बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल फील करता है, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. दे फील अनकंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट अ इंडिजिनस पर्सन कैन स्पीक आउट फॉर हिज ओन पीपल. दे फील अनकंफर्टेबल फॉर द फैक्ट दैट समवन who is raising uncomfortable questions. Uncomfortable questions doesn't mean that they are not nationalistic questions. They have a problem with that. But let me tell you one thing. Regional political parties in the Northeast will always have a bit of activism within themselves. We cannot become a political party from UP, Bihar or Madhya Pradesh. हमारा सोच अलग है. Our outlook is different, our thinking is different, and there is no harm in this country being different from another part of India. In Assam, we have fight for that. We have had historical Assam movement. We have lost 855 matriarchs. And after that movement, we have Assam Accord. But when the central government, they have imposed the Citizen Amendment Act. The act was totally communally motivated act, and they are trying to polarize the whole population of India in the name of religion, and imposing this bill in entire India. But for Northeast and Assam, see, we have already take the load of illegal foreign up to 71. As Pradyu have said earlier, that if one is illegal foreigner, he is a illegal foreigner. He may be Hindu, he may be Muslim. Therefore, we cannot accept any load of illegal foreigner in the soil of Assam and entire Northeast. And in Kaha time, the Chief Minister of Meghalaya, he have shown his strength, his love to his state and entire Northeast. उसने करके दिखाया कि नेता को जब संकट का घड़ी जब आता है, उसी समय पता होता है कि कौन नेता है या कौन पॉलिटिशियन. और हमारे जो अपने स्टेट के लेवल पर, रीजनल लेवल पर हमारे क्या इश्यूज हैं, वो एक अलग इशू. और मेरे ख्याल से मेरा सोच यही है कि जब हम लोग इन इश्यूज को डिस्कस करेंगे तो हमें एहसास होगा कि ये दो इश्यूज एक साथ चल सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, हां, एक रीजनल होने के नाते मेरे स्टेट, मेरे ट्राइब के इश्यूज हैं, लेकिन हम लोग नेशनल एक आउटलुक, नेशनल लेवल पर हम लोग काम कर सकते हैं. ये सोच के साथ हम लोग ने ये टॉपिक हमने डाला. दूसरी बात, कभी कभी लगता है, कभी कभी इसमें कुछ आप लोग गलत मत सोचिए, कभी कभी लगता है कि लोगों को जब वो नेशनल स्टैंड लेते हैं तो लोगों को लगता है कि हम अपने लोगों के खिलाफ हैं. जैसे कि आज एक छोटा सा डिस्कशन हुआ हिंदी के बारे में. अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम सब अपनी कल्चर, हम अपने लोगों से, हम अपना लैंग्वेज या अपने कोई भी हमारा कल्चरल एस्पेक्ट हो, हमें उससे प्यार है और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं. लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपके बच्चों से पूछेंगे, कोई जो शायद गुवाहाटी में पढ़ते हो, दिल्ली में पढ़ते हो, तो बच्चे लोग आजकल स्पेनिश सीखना चाहते हैं, इटालियन सीखना चाहते हैं, चाइनीज सीखना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पड़े. तो जैसे कौशिक जी ने भी बोला कि अगर हम लोग हिंदी भी सीख ले उसके साथ साथ, उसमें कोई गलत फहमी नहीं है, कोई गलती नहीं है उसमें. आज हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के हर कोने में, ऑलमोस्ट अलग अलग कोनों में, एक वन लैंग्वेज जो एक तरह से यूनिवर्सल टाइप है. और इसलिए अगर हमारे बच्चे अगर इटालियन सीख सकते हैं, स्पेनिश सीख सकते हैं, हिंदी क्यों नहीं? तो मेरा भी ये मानना है कि कहीं कभी कभी हम लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हमने हिंदी गाना सुनना शुरू किया तो हम हमारे लोगों के खिलाफ हैं. ऐसे चीजों को हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. तीसरी बात, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं एक जनरल एस्पेक्ट में कहना चाहता हूं, और ये मेरे ख्याल से मेरे आज मैसेज का सबसे इंपॉर्टेंट
मैसेज होगा। जब हम किसी भी इश्यू को हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं, किसी भी इश्यू, ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग हरदम अपना पोजीशन देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आईएलपी का इश्यू आया तो हम लोग बोलते हैं या तो आईएलपी दो या मत दो, ये हमारा पोजीशन है, हमारा स्टैंड है। लेकिन बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इश्यू इंपॉर्टेंट है। हमारा इश्यू क्या है? इलीगल इमिग्रेशन। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आईएलपी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारा इश्यू आईएलपी नहीं है, हमारा स्टैंड आईएलपी है, लेकिन हमारा इश्यू इलीगल इमिग्रेशन है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको एक और एग्जांपल बताता हूं। बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट में अगर आप दो स्टेट के बीच में आप झगड़ा करेंगे तो आपको दोनों स्टेट बोलेंगे बिल्कुल नहीं, मैं 1 इंच नहीं दूंगा। ये हमारा स्टैंड है, हमारा पोजीशन, 1 इंच नहीं दूंगा। आप सब लोगों को साथ लेके आइए, और ये सब मेघालय के साथ हो रहा है भाई। आप सबको साथ लेके आएंगे, आसाम के लोगों को, मेघालय के लोगों को आप वहां पे बिठाएंगे। उन लोगों से पूछेंगे भाई लोगों यहां पे 7 गांव हैं, दोनों बोल रहे 1 इंच नहीं दूंगा, दोनों बोल रहे हैं। ये अपना स्टैंड, अपना पोजीशन है। इश्यू क्या है? इश्यू डिस्प्यूट है। अगर आप उनसे पूछेंगे भैया, आप आसाम वाले को पूछेंगे आप बताइए ये 3 गांव कहां पे है, तो आसाम वाले बोलेंगे ये 3 गांव, ये तो मेघालय है। मेघालय से पूछेंगे ये 3 गांव का है, वो बोलेंगे हाँ ये मेघालय है। फिर वो 7 गांव में से 4 गांव जो बाकी हैं, आप मेघालय से पूछिए वो कहां है, वो तो आसाम में है। और आसाम से पूछेंगे ये गांव कहां है, वो भी बोलेंगे हाँ ये तो आसाम है। तो झगड़ा कहां है भाई? आसाम भी बोल रहा है, मेघालय भी बोल रहा है कि वो 4 गांव में आसाम में है, मेघालय भी बोल रहा है, आसाम भी बोल रहा है कि ये 3 गांव मेघालय में है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं, जब हम अपना स्टैंड, एक पोजीशन कि मैं 1 इंच नहीं दूंगा, ये स्टैंड से हम लोग हटकर एक बार हम इशू को देखें कि इशू क्या है। इज देयर अ वे टू वर्क आउट अ सोल्यूशन जहां पे हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। जब आप 2-3 चीज बातें करना शुरू करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर समय हम लोग अपना एक पोजीशन देख रहे हैं, उस पोजीशन से हम लोग नहीं हटेंगे करके हम लोग बात शुरू करते हैं, और तभी हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज में नहीं पहुंच पाते। कभी कभी इस पोजीशन की वजह से हम अपना इशू हो जाते हैं। आज मैडम पृथ्वी मुखर्जी ने आपको बताया कि आईएलपी के बारे में, और हमारा एक लॉ हमने बनाया था, मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एक्ट, MRSSA, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट, MRSSA। ये दोनों लॉज ऐसे लॉ हैं जो पोजीशन है, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि भी इलीगल इमिग्रेशन को कम करना। नाउ अगेन लेट मी टेल यू, there is no right solution to illegal immigration. Let me be very clear. And I can also tell you that there will be no solution that everybody will agree to. But the question is, we should move forward and do something and find a way forward. और उस मोशन में, मूवमेंट में बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो बोलेंगे बिल्कुल गलत, बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया। That is the nature of decision making, that's the nature of policy making, and that's the reason why politicians' biggest job is to take a decision and stand by it. A leader's job is that. तो therefore, आज हमारे यहां पे आईएलपी और MRSS का है। आईएलपी क्या है? आईएलपी कहता है कि भाई बिना परमिट के आप उस स्टेट पे नहीं घुस सकते, आपको परमिट लेना पड़ेगा। MRSS से हमने रूल बनाया क्योंकि दिल्ली बोलता है कि नहीं, आईएलपी अगर आप करेंगे तो आपके यहाँ पे 6 शेड्यूल है, आप एक ट्रांजिट स्टेट हो, बहुत सारे इश्यूज है, पब्लिक को दिक्कत होगी। तो हमने कहा कि ठीक है, तो अगर आप हमको आईएलपी नहीं दे पाएंगे तो हम लोग अपना MRSS से रूल निकालेंगे जिसमें परमिट नहीं होगा। हम लोग आपसे परमिट नहीं मांगेंगे, लेकिन हम लोग एक रूल बना रहे हैं कि जो भी अंदर आएगा आपको हमारे साथ रजिस्टर करना है। और ये रजिस्ट्रेशन आपको लाइन पे खड़े होके नहीं, आप मोबाइल में
प्लेन में बैठते बैठते या प्लेन से उतरते उतरते 4 स्टेप है। अपना नाम, आप कहां रहने वाले हैं, अपनी आईडी स्कैन करके हमारे सेंट्रलाइज सर्वर में आप अपलोड कर दीजिए, आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। वो क्यूआर कोड को या तो आप होटल में स्कैन करेंगे तो आपका होटल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप कहीं पे भी, जो अगर पुलिस वाला भी स्कैन करेगा तो उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और ये चीज हर स्टेट में होता है। आप बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जब होटल जाएंगे तो आपको आईडी मांगेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो रजिस्ट्रेशन जो आप बॉम्बे, दिल्ली एयरपोर्ट में, होटल में करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करके दे रहा हूं एडवांस में। तो ये है MRSS के, मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एक्ट, एन ऑल्टरनेटिव टू ILP, or rather I should say another solution to be able to not only gather information about the people who are entering so that we are able to monitor, but also a mechanism through which we can see the people who are coming in and provide the necessary safety and security for them also in case they, for example, कोई अगर वहां पे था स्टेट में, वो कहां रह रहा है, किधर में, किस होटल में चेक इन किया है, ये इंफॉर्मेशन शायद होटल के पास होगा, लेकिन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इंफॉर्मेशन इंटेल में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग अपने पोजीशन पे बैठे रहे कि ILP ही चाहिए, कि हम लोग बोले कि भाई नहीं वर्क परमिट सिस्टम ही चाहिए, तो हम लोग वो इश्यू को हम लोग भूल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरे सब दोस्तों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हमें इस पोजीशन माइंडसेट से निकलना होगा और हमें इश्यू बेस्ड पोजीशन अपना स्टैंड लेना होगा, तभी जाके हम लोग सोल्यूशन पे आ सकेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पोजीशन लेकर अटक जाते हैं और उसकी वजह से बहुत मिसकंफ्यूजन होता है। और मेरा यह मानना है कि अगर हम लोग कोई भी इस इश्यू में, अगर हम लोग इस एंगल से हम लोग ने सोचना शुरू किया, तो मैं ही नहीं कह रहा कि पूरा, मुझे लगता है कि कम से कम 50 to 60% इश्यूज हमारे नॉर्थ ईस्ट